Hello students, next unit is proteins. So first of all, what is proteins? Proteins are the most abundant and important components of the body. It accounts for about 60% of our body weight. Protein is derived from a word that is proteose, which means primary. Protein contains carbon, hydrogen, oxygen and also nitrogen. So the calorific value of the protein, 1 gram of protein gives 4 kilocalories. Next is the classification of proteins. So proteins are classified into four types. First of all, based on chemical composition. Second one is the based on structure. Third, based on biological function. And last one, based on source of protein molecule. So first one is based on chemical composition. First, simple, conjugated, and then derived. Based on structure, globular protein and fibrous protein. So first of all, what is fibrous? What is the difference between fibrous and globular proteins? So the properties according to shape, fibrous protein are long and narrow. Globular proteins are rounded and spherical. Role, fibrous proteins structural, strength and support, and the globular proteins functional, catalyst and transport. Solubility in water. Fibrous proteins are mostly insoluble in nature and globular proteins are mostly soluble in nature. Sequence of amino acid. In fibrous protein, repetitive amino acid sequences, and in globular proteins, irregular amino acid sequence. So according to stability, fibrous protein are less sensitive to changes in heat and pH, and the globular proteins are more sensitive to changes in heat and pH. And now what are the examples of the fibrous proteins? Collagen and keratin, and globular protein are the hemoglobin, insulin and catalase. Next is the based on biological functions. The proteins are subdivided into enzymatic proteins, transport or carrier proteins, nutrients and storage proteins, defense or defensive proteins, contractile or motor proteins, regulatory proteins, toxic proteins, and last one is the structural proteins. So first one is the enzymatic proteins. So we all know that enzymes are biological molecule, typically proteins that significant speed up the rate of virtually all the chemical reaction that takes place within cell. एंजाइम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, ठीक है, स्पीड अप करते हैं जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है, उनके रेट को. They are vital for life and serve a wide range of important function in our body, such as help in digestion and metabolism. Clear? Next are the carrier protein. Carrier protein is a type of cell membrane protein involved in facilitated diffusion as well as active transport of substances out or into the cell. ठीक है. कैरियर प्रोटीन को हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, टनल प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपने देखी होंगी कैरियर प्रोटीन्स. नेक्स्ट इज द स्टोरेज प्रोटीन्स. Storage proteins are those stored inside the cell or tissue as reserved food and can be metabolized at the time of nutrient requirement, and it provides us energy. Stored nutrients. Examples of storage proteins are casein stores proteins in milk, and ferritin store iron in the spleen and liver. स्प्लीन क्या है हमारा? स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं, एंड लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड. नेक्स्ट इज द डिफेंसिव प्रोटीन्स. डिफेंसिव प्रोटीन्स वर्ड से ही समझ आ रहा है, आर नोन एज एंटीबॉडीज एंड आर फाउंड इन आर इम्यून सिस्टम. द डिफेंसिव प्रोटीन ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हमारे बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर कर जाता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है. नेक्स्ट आर द कॉन्ट्रेक्टाइल एंड मोटर प्रोटीन्स.
These proteins are responsible for movements. Examples, the proteins actin and myosin create relaxation as well as contracting in muscles to allow for movement. ठीक है, structural proteins provide support. For example, keratin forms hair and feathers, collagen form connective tissue and hold cell together and intercellular joining. Clear? Next are the regulatory proteins. Some proteins रेगुलेट का मतलब क्या है, मेंटेन करना. ठीक है, सम प्रोटीन्स रेगुलेट सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज. मैनी प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिग्नल ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन क्या होता है बच्चे, जब भी कोई फॉरेन डीएनए हमारे सेल में एंटर कर जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन. क्लियर? एग्जाम्पल्स क्या है इसके, इंसुलिन रेगुलेट शुगर मेटाबॉलिज्म. ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को हम लोग क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं. ठीक है, ताकि क्या हो जाए, शुगर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाए, उसका मेंटेन हो जाए. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर बोन ग्रोथ. नेक्स्ट आर द टॉक्सिक प्रोटीन्स. Some proteins act as toxic substances such as snake venom, toxic plants proteins like resins and the bacterial toxins. Next is the structural proteins. These proteins are usually inert to biochemical reactions. Clear? And they maintain the native form and position of our organs. The cell wall and the primary fibrous constituents of the cell have fibrous proteins. Example क्या structural protein का, collagen. Next one is the based on sources of proteins. First one is the animal protein and second one is the plant proteins. Next, recommended dietary allowances for proteins. ठीक है, चिल्ड्रन एजेस 1 to 3 ग्राम, कितने ग्राम प्रोटीन नीडेड होती है पर डे, 13 ग्राम. चिल्ड्रन एजेस 4 to 8, 19 ग्राम. चिल्ड्रन एजेस 9 to 13, 34 ग्राम. गर्ल्स एजेस 14 to 18, 46 ग्राम. बॉयज एजेस 14 to 18, 52 ग्राम. women ages 19 to 70 plus 46 gram and men ages 19 to 70 plus 56 gram. Next are the sources of protein. So these are the sources of proteins: fish, eggs, chicken, sprouts, nuts, almond seeds, broccoli, Greek yogurt, milk, oats, lentils. These all are the sources of proteins. फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. सो प्रोटीन की क्या क्या फंक्शन होते हैं, ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करती है. ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में एक्ट एज अ मैसेंजर. ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, मेंटेन पीएच, बैलेंस फ्लूइड, बूस्टर आर इम्यून हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स. Next is the digestion and absorption. So first one is the digestion. In chemical digestion, enzyme break down food into small molecules the body can use. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम की हेल्प से जब हमारा लार्ज फूड पार्टिकल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल डाइजेशन. नेक्स्ट, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फूड एंटर द माउथ and mechanical digestion of the food start by the action of mastication or chewing, a form of mechanical digestion, and the betting content of the saliva, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, physical digestion. ठीक है, next is the digestion in mouth. So always remember there is no digestion of protein in माउथ. ठीक है, प्रोटीन की डाइजेशन माउथ में नहीं होती है क्योंकि कोई भी प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है वो हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट नहीं होता है. इसीलिए स्लाइवा क्या करती है, सिर्फ फूड को क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, जिसकी वजह से दिस हेल्प इन मेकिंग फूड सोल्यूबल फॉर द एक्शन ऑफ द प्रोटीलिटिक एंजाइम्स. नेक्स्ट इज द डाइजेशन इन स्टमक. सो प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है. ठीक है, व्हेन प्रोटीन एंटर द स्टमक it stimulate the secretion of gastrin hormone and this gastrin in turn stimulate the release of gastric juices. ठीक है, जैसे ही प्रोटीन हमारी स्टमक में एंटर करेगी तो कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन. और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस विच कंटेन्स HCl, पेप्सिनोजन, जाइमोजन भी बोलते हैं हम इसे, और रियानिन इन इन्फेंट्स. क्लियर?
The pH of the gastric juices is 1.5 to 2.5. Role of gastric HCl, and this pH is the acidic pH. Role of gastric HCl, गैस्ट्रिक HCl का क्या रोल होता है? इट कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इट कन्वर्ट प्रोटीन टू मेटा प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन को मेटा प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से क्या होती है? प्रोटीन क्या होती है? इजिली डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, एंड इट कन्वर्ट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, एंड इट मेक्स पीएच इन द स्टमक सुटेबल फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का क्या रोल होता है? ये इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl। ठीक है, पेप्सिन किसकी वजह से एक्टिवेट होता है? HCl की वजह से, बाय ऑटो एक्टिवेशन, एंड इट्स ऑप्टिमम पीएच इज 1.5 to 2.2, and it is an endopeptidase acting on the central peptide bond. It is secreted in active form called, एक्टिव फॉर्म क्या होती है पेप्सिन की? पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन gives pepsin in the presence of HCl. Clear? रोल ऑफ रियानिन। रियानिन का क्या रोल होता है? इट इज अ मिल्क क्लोटिंग एंजाइम, इट इज प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ इन्फेंट एंड यंग एनिमल्स, एंड इट्स ऑप्टिमम पीएच कितना होता है इसका? 4। और ये क्या करता है? कन्वर्ट केजिन ऑफ मिल्क इनटू पैराकेजिन। क्लियर? एंड इट कंबाइन विद कैल्शियम फॉर्मिंग कैल्शियम पैराकेजिनेट। ठीक है, मेनली इसका काम क्या है? ये केजिन को किस में कन्वर्ट करता है? पैराकेजिन में, और इसका पीएच 4 होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन्फेंट के स्टमक में, और ये एक मिल्क क्लोटिंग एंजाइम है। नेक्स्ट इज द डाइजेशन इन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में डाइजेशन कैसे होती है प्रोटीन की? ट्रिप्सिन। ठीक है, it is an endopeptidase and secreted in an inactive form called trypsinogen. Its optimum pH is 8, and it is activated by enterokinases. It hydrolyzes central peptide bond in which the carboxylic group belong to the basic amino acid. आपने सिंपली क्या याद रखना है कि डाइजेशन इन पेनक्रियाज में क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन gives trypsin in the presence of enterokinases। ये आपको रिएक्शन मेनली याद होनी चाहिए, और पीएच कितना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कीमोट्रिप्सिन क्या करता है? इट इज द एंडोपेप्टाइडेजेस एंड सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, इट्स ऑप्टिमम पीएच इज 8, इट इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन। क्लियर? लास्ट लाइन आप नहीं भी करोगे, न्यूट्रिशन में इतनी नीडेड नहीं है। ठीक है, लिखा गया है वैसे। इट हाइड्रोलाइज द सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिलोंग टू द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ये बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द इलास्टेज। It is also endopeptidases and secreted in an inactive form called pro proelastase. Its optimum pH is 8. It is activated by trypsin, and it digests elastin as well as collagen. ठीक है, it hydrolyzes the central peptide bond in which the carboxylic group belong to the aromatic amino acid. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें आपने सिंपली यही याद रखना है कि ये क्या है? एंडो पेप्टाइडेजेस है, और सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो इलास्टेज। ऑप्टिमम पीएच इसका 8 है, और ये एक्टिवेट किसके थ्रू होता है? ट्रिप्सिन के थ्रू, और ये किस चीज डाइजेस्ट करता है? इलास्टिन और कोलेजन को। क्लियर? डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ठीक है, with the help of aminopeptidases, dipeptidases and tripeptidases. Aminopeptidases क्या है? Exopeptidases है। ठीक है, it act on the terminal peptide bond at the amino terminal of the peptide chain. Dipeptidases, dipeptidases, it act on dipeptide and it release two amino acid. Tripeptidases, it act on tripeptide and it releases single amino acid and dipeptides. Clear? Next is the, wait, next is the absorption of amino acids. So site of absorption is amino acid absorbed
ileum and digital jejunum, and second is the di and tripeptidases, duodenum and proximal jejunum. ठीक है, ये क्या है, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, carrier mediated and ATP sodium dependent symbiote system, and the free amino acids, dipeptides and some extent of tripeptides gives intestinal epithelial cells. ठीक है, तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन मेनली क्या है, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब्ड इलियम में होता है और जेजुनम में, और डाई और ट्राइपेप्टाइडेज की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, ड्यूडेनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम में। ठीक है, और ये क्या एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के लिए किस चीज़ की नीड होती है, एटीपी की नीड होती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं, कैरियर मीडिएटेड एंड एटीपी सोडियम डिपेंडेंट सिम्पोर्ट सिस्टम, एंड द फ्री अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइडेजेस एंड सम एक्सटेंट ऑफ ट्राइपेप्टाइडेजेस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल cells. Next is the small intestine possesses an efficient system to absorb free amino acids. First one is the L amino acid and second one is the D amino acid. L amino acid is more rapidly absorbed and the active process, and D amino acids is the simple diffusion के through absorb होता है. Next is the mechanism of amino acid absorption. These tripeptidases and dipeptidases, di and tripeptide, di and tripeptidase are absorbed across the enterocyte membrane by H plus dependent transporters. ठीक है, कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं ये, अक्रॉस द एंटीरोसाइट्स मेम्ब्रेन में, और किसके थ्रू, कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू, H पॉजिटिव डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, di and tripeptidases are further hydrolyzed to amino acid inside the intestinal mucosa. ठीक है, द फाइनल ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द ब्लड। ठीक है, ब्लड में ट्रांसफर किसके थ्रू होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। सो ओनली फ्री अमाइनो एसिड आर अपेयर इन द ब्लड। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज लिखी है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हेयर द ल्यूमन, हेयर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हेयर द ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन हैज डिफरेंट मैकेनिज्म। एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है, इट इज बेसिकली अ सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव प्रोसेस linked with the transport of sodium. Clear, enzyme, sorry, energy is supplied indirectly by the ATP. Next mechanism is the sodium independent system of amino acid, and third is the gamma glutamyl cycle or मिस्टर साइकिल। इसमें क्या होता है, ट्राईपेप्टाइडेज चेंज होता है किसमें, ग्लूटाथियोनोन में। ठीक है, जिसे हम गामा ग्लूटामाइल सिस्टीनाइल ग्लाइसिन भी बोलते हैं। इसमें 3 एटीपी यूटिलाइज्ड होते हैं फॉर सिंगल अमाइनो एसिड। ठीक है, सो मेनली आप दो मैकेनिज्म याद रखना, सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, और सेकेंड वन इज द सोडियम इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ अमाइनो एसिड। Protein storage. Human body are not able to store protein for the most part. The human body can break down its muscle tissue to get certain amino acid or the building block of protein, but it has no specialized cell to store protein efficiently. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ऐसे कोई भी स्पेशलाइज सेल नहीं होते हैं जहाँ पे प्रोटीन जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, सो ईटिंग प्रोटीन रेगुलरली इज एन पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। क्लियर। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो कंडीशन आती है, क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। ये हमने फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जब हमने रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ में हमने क्वाशियोरकर और मेरास्मस डिटेल में पढ़ा है, तो वही कंटेंट अगर आता है आपको डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन की वजह से क्या होता है, वेट गेन हो जाता है, रिड्यूस लीवर एंड ब्रेन फंक्शन एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्क्स।
सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आप बायोकेमिस्ट्री में जो पढ़ोगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर न्यूट्रिशन में आता है। मेनली न्यूट्रिशन में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में ही क्वेश्चन के बारे में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है आपका ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। अगर आपने इस स्लाइड्स के नोट्स से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आपने जो खुद के नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जो आप ग्रुप में सेंड करते हो, वहाँ पे अगर आपको इजी लगता है तो वहाँ से आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, जहाँ से आपको इजी लगे। और अगर, ठीक है, और इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन वाला आ सकता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है, क्वाशोरकर मरासमस कंडीशन आती है उसमें। ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, ठीक है, ये आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन अलग अलग क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना इसकी, ठीक है। और RDA फॉर प्रोटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। थैंक यू स्टूडेंट्स।